Hello students, my name is Hiral Lotia from JMP English Medium School. Kids, we completed our chapter number 4, soil, right? In today's session, I am going to introduce you new chapter number 5, solids, liquids and gases. In this chapter, first of all, I am going to introduce vocabulary words and meanings, right? तो फटाफट से चलो vocabulary words कर लेते हैं. Kids, यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है vocabulary words, right? चलो let's do that. Number 1, materials. M-A-T-E-R-I-A-L-S. Materials. M-A-T-E-R-I-A-L-S. Materials. M-A-T-E-R-I-A-L-S. Materials. We are going to pronunciate each and every vocabulary words 5 times. Okay. Number 4 time. Materials. M-A-T-E-R-I-A-L-S. Materials. M-A-T-E-R-I-A-L-S. Materials. Number 2, definite. D-E-F-I-N-I-T-E. Definite. D-E-F-I-N-I-T-E. Definite. D-E-F-I-N-I-T-E. Definite. D-E-F-I-N-I-T-E. Definite. D-E-F-I-N-I-T-E. Definite. Number 3, mixture. M-I-X-T-U-R-E. Mixture. M-I-X-T-U-R-E. Mixture. M-I-X-T-U-R-E. Mixture. M-I-X-T-U-R-E. Mixture. M-I-X-T-U-R-E. Mixture. Number 4, evaporation. E-V-A-P-O-R-A-T-I-O-N. Evaporation. E-V-A-P-O-R-A-T-I-O-N. Evaporation. E-V-A-P-O-R-A-T-I-O-N. Evaporation. E-V-A-P-O-R-A-T-I-O-N. Evaporation. E-V-A-P-O-R-A-T-I-O-N. Evaporation. Next, number 5, condensation. C-O-N-D-E-N-S-A-T-I-O-N. Condensation. C-O-N-D-E-N-S-A-T-I-O-N. Condensation. C-O-N-D-E-N-S-A-T-I-O-N. Condensation. C-O-N-D-E-N-S-A-T-I-O-N. Condensation. C-O-N-D-E-N-S-A-T-I-O-N. Condensation. Number 6, freezing. F-R-E-E-Z-I-N-G. Freezing. F-R-E-E-Z-I-N-G. Freezing. Kids, speak with me, okay? F-R-E-E-Z-I-N-G. Freezing. F-R-E-E-Z-I-N-G. Freezing. F-R-E-E-Z-I-N-G. Freezing. Now, number 7, vapor. V-A-P-O-U-R. Vapor. V-A-P-O-U-R. Vapor. V-A-P-O-U-R. Vapor. V-A-P-O-U-R. Vapor. V-A-P-O-U-R. Vapor. Next, number 8, matter. M-A-T-T-E-R. Matter.
container, container. container, container. container, container. Number 10, melting, 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 melting. Now next, number 11, solid, 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 solid. Number 12, liquid, 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 liquid. Now next, number 13, gases, 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 gases. Next, number 14, flow, 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 flow. Now last one, number 15, droplets, 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 droplets. Done, kids? Once again we will repeat that, okay? Number 1, materials, materials, materials. Number 2, definite, definite. Number 3, mixture, mixture. Number 4, evaporation, evaporation. Number 5, condensation, condensation. Number 6, freezing, freezing. Number 7, vapor, vapor. Number 8, matter, matter. Number 9, container, container. Number 10, melting, melting. Number 11, solid, solid, solid. Number 12,
liquid, Liquid, liquid. Number 13, gases, Gases, gases. Number 14, flow, Flow, flow. Last one, number 15, droplets, Droplets, droplets. Kids, let's pronunciate it once again. मेरे साथ साथ आप भी pronunciate करोगे. Number 1, materials. Number 2, definite. Number 3, mixture. Number 4, evaporation. Number 5, condensation. Number 6, freezing. Number 7, vapor. Number 8, metal. Number 9, container. Number 10, melting. Number 11, solid. Number 12, liquid. Number 13, gases. Number 14, flow. Number 15, droplets. So easy, right kids? Here we completed our vocabulary words. Now let's begin our meanings. Here you can see meanings, right? आपको यहाँ पे meanings दिख रहे हैं ना? Number 1, definite, fixed and unlikely to change. Definite मतलब एक fix रहता है जिसमें हम कोई भी changes नहीं कर सकते. If suppose this is my water, तो it is like के इसका definite shape है. मैं क्या कुछ भी करूँ, ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, कुछ भी करूँ, तो इसके शेप में कोई भी changes आएगा नहीं आएगा. एक तो ये solid है और उसकी एक definite shape है, उस वजह से इसमें कोई भी changes आएगा नहीं. This is a board है, कुछ भी मैं करूँगी उसमें changes आएगा नहीं आएगा, because it is solid, right? It is a solid matter. और इसमें हम इसका शेप भी definite shape है, मतलब एक fixed shape है, उसमें कोई भी changes आ सकता नहीं है. Definite, fixed and unlikely to change. Now number 2, vapor, very small drops of liquid in the air, for example steam. हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एयर के अंदर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं. What we are going to call it as a vapor. हम उसको क्या बोलेंगे? Vapor. क्यों vapor बोलेंगे? एग्जाम्पल क्या हुआ वेपर का? स्टीम. जब हम कोई भी वाटर को बॉईल करते हैं तो फिर कोई भी चीज को गर्म करते हैं तभी उसमें से स्टीम निकलती है, राइट? तो वो स्टीम एयर में जाके छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में आ जाती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वेपर. हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ये वाटर ड्रॉपलेट्स होते ही रहते हैं, राइट? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में कॉन्टिन्यूअसली वाटर साइकिल होती रहती है, या तो फिर वो नेचुरली वाटर से होती है, सी के वाटर से, रिवर के वाटर से, लेक के वाटर से, पॉन्ड के वाटर से, या तो फिर अननेचुरली हमारा कोई भी हाउस होल्ड थिंग होता है, हम उसके रिगार्डिंग कोई भी किचन आइटम को बनाने के लिए, कुक करने के लिए हम कुछ भी बनाते हैं, तभी उसमें से स्टीम निकलती है. तो उसमें से उसी तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में वेपर प्रेजेंट रहता है. नाउ नंबर 3, freeze, to turn something liquid into solid. कोई भी चीज लिक्विड में है, हमें उसको सॉलिड में टर्न करना है, मतलब उसको फ्रीज करना. किड्स
आप लोग डेयरी मिल्क खाते हो राइट, वो जब वो मेल्ट हो जाती है तब हम उसको क्यों फ्रीज करते हैं? क्यों फ्रीज करते हैं? क्योंकि उसको खाने के लिए हमें उसको सॉलिड फॉर्म में करना पड़ेगा राइट। तो फ्रीज करने का मतलब कोई भी लिक्विड चीज को हमें सॉलिड फॉर्म में चाहिए तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फ्रीज करना पड़ेगा। फिर जो आइस क्यूब्स होते हैं राइट, आइस क्यूब्स तो वो भी वाटर में से ही कन्वर्ट होकर आइस में कन्वर्ट हुए हैं राइट। तो पहले तो वो वाटर ही था, पर फिर हमें आइस चाहिए ठंडा ठंडा राइट, तो हमने क्या किया, उसको फ्रीज कर दिया। तो आइस किस में कन्वर्ट हो गया? आइस क्यूब्स में। तो वो लिक्विड में से किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग। टू टर्न समथिंग लिक्विड इनटू सॉलिड। नाउ नेक्स्ट नंबर 4, मेल्ट। टू टर्न समथिंग सॉलिड इनटू लिक्विड। मेल्ट करना मतलब આપણે ગુજરાતીમાં કે કહીએ ને કે ઓગાળવું, ओगाड़ू मतलब मेल्ट करूं। सपोज आइस क्यूब है, उसको हमें मेल्ट करना है तो वो सॉलिड फॉर्म में से मेल्ट होके किसके फॉर्म में जाएगा? लिक्विड के फॉर्म में। कोई भी चॉकलेट है, हमें उसको मेल्ट करना है राइट, तो वो भी सॉलिड फॉर्म में से किसके फॉर्म में जाएगी? लिक्विड फॉर्म में राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी सॉलिड चीज को हमें मेल्ट करना है, लिक्विड फॉर्म में लाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? मेल्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेल्ट करना पड़ेगा। टू टर्न समथिंग सॉलिड इनटू लिक्विड। कोई भी चीज को टर्न करना सॉलिड में से लिक्विड में। क्लियर किड्स? नाउ लास्ट वन, नंबर 5, कंडेंस। The way of changing from gas to a liquid. कंडेंस मतलब एक चेंज होता है जिसको गैस में से उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करने का। दीदी वो कैसे पॉसिबल होता है? कैसे? सोचो। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूं। गैस मतलब कोई भी स्टीम होती है ना, जैसे कि मम्मा आप लोगों के लिए गरम गरम नाश्ता बनाती है, तभी उसमें से स्टीम निकलती है राइट। इसका मतलब वो गैसियस फॉर्म हुआ ना। तो जब भी वो गरम गरम लंच बॉक्स मम्मा बंद कर देती है, तब आप लंच बॉक्स ओपन करते हो, तभी वो बट नेचुरल है, वो कोई भी चीज़ है वो ठंडी होना स्टार्ट हो गई होगी। आप जब खाओगे तब तो डेफिनेटली कूल हो गई होगी। तो वो गैसियस स्टेट ठंडा ठंडा होते किसमें चेंज हो गया? छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में। कैसे? छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स। तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंडेंस। किड्स, आप जब भी डिनर लंच करते हो तो मम्मा ने कोई भी यूटेंसिल के ऊपर लीड ढक के रखा होता है। लीड को जब भी आप अचानक से उठाते हो तो उस पूरे लीड में वाटर पार्टिकल, वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए होते हैं। आप लोगों ने कभी नोटिस किया है किड्स? नहीं किया है तो डेफिनेटली आप करोगे। ओके, तो कोई भी आप रोटी का डब्बा ले लो, उसके आजू बाजू में उसके लीड में भी आप एक बार चेक करो, उसमें भी वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए होंगे। क्योंकि जब ये जो गैस पार्टिकल्स जब ठंडा होना स्टार्ट कर देते हैं तब वो छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स में आ जाते हैं ठंडा होने के बाद। ओके, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंडेंस। द वे ऑफ चेंजिंग फ्रॉम गैस टू अ लिक्विड। Clear kids? Here we completed our meanings also. Let's read this once again. फटाफट से ये हम फटाफट से एक बार रीड कर लेते हैं, right? Number 1, definite, fixed and unlikely to change. Number 2, vapor, very small drops of liquid in the air, for example steam. Number 3, freeze, to turn something liquid into solid. Number 4, melt, to turn something solid into liquid. Last one, number 5, condense,
the way of changing from gas to a liquid. Right kids? I hope so you understand all the meanings. फटाफट से एक बार वापस बोल रही हूँ। डिफाइनाइट मतलब कोई भी चीज का डिफाइनाइट शेप जो फिक्स होता है हम उसको क्या बोलेंगे? डिफाइनाइट। फिर है वेपर। एटमॉस्फेयर में हमारे मॉइस्चर में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, हम उसको क्या कहेंगे? वेपर। राइट। फिर है फ्रीज। कोई भी लिक्विड चीज को हमें सॉलिड फॉर्म में लाना है तो हम उसको क्या करेंगे? फ्रीज करेंगे। फिर है मेल्ट मतलब कोई भी सॉलिड चीज को हमें लिक्विड में करना है तो हम उसको मेल्ट करेंगे। मेल्ट आप कैसे करोगे? या तो कोई भी चीज को फ्रीज टेम्परेचर से हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर में लाएंगे तो अपने आप मेल्ट हो जाएगा, या तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं हम स्टोव में उसको रख के गरम करके उस चीज को भी मेल्ट कर सकते हैं। चॉकलेट्स कोई है मम्मा केक्स बनाती है, चॉकलेट्स बनाती है स्लैब को मेल्ट करके, तब आप देखना उसमें मम्मा मेल्ट करती होगी सब कुछ। हम फ्रीज में घी रखा होता है ना, घी उसको भी किसी चीज के लिए यूज करना है तो उसको सबसे पहले गरम करके उसको मेल्ट करना पड़ता है। नहीं पता है तो मम्मा को बोलना, ओके? वो आपको दिखाएगी मेल्ट करके। तो ये इसे मेल्टिंग बोलते हैं। ओके। लास्ट वन कंडेंस मतलब कोई भी गैसियस स्टेट में से जब वो ठंडा होना स्टार्ट कर देता तब कोई भी गैस फॉर्म में होता है, जब वो ठंडा करना स्टार्ट कर देते हैं तब क्या फॉर्म होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। ओके। I hope so kids you understand vocabulary words and meanings of this chapter. आपको अच्छी तरह से vocabulary words और meanings आपको समझ आए ना kids? तो ये चैप्टर में मैं आपको हाईलाइट दूं कि मैं ये चैप्टर में आपको क्या क्या एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैं ये चैप्टर में आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मटेरियल्स, हम यहाँ पे मटेरियल्स के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं ना, जैसे सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ये वो किसको सॉलिड बोलते हैं, किसको लिक्विड बोलते हैं, किसको गैसेस बोलते हैं, ये मैं आपको इसी चैप्टर में इंट्रोड्यूस कराऊंगी। फिर कराऊंगी उसको डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगी। फिर चेंज ऑफ फॉर्म, जैसे कि मैंने बोला ना, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, ये सारे क्या है? फॉर्म को चेंज करना, वो भी इसी चैप्टर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। तो ये सारी चीजें मैं इसी चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगी। फिर लास्ट में है यूजेस ऑफ मैटर, मतलब ये सारे के सारे मैटर तो है बट उसके यूजेस भी होते हैं, तो वो भी मैं इसी सेशन में आपके इसी चैप्टर में आपके साथ डिस्कस करूंगी। ओके किड्स, तो नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने वाली हूँ? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मटीरियल्स। राइट। तो यहाँ पे सेशन हमारा खत्म हो रहा है। मैं यहाँ पे आई एम शेयरिंग अ PDF विथ यू, PDF ऑफ वोकेबुलरी वर्ड्स एंड मीनिंग्स। दीदी ने जैसे वोकेबुलरी वर्ड्स और मीनिंग्स लिखा है बिल्कुल वैसे ही आपको कॉपी करके आपकी CW में अच्छे राइटिंग के साथ, अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ लिखना है। ओके किड्स, आपको जो सेशन जिस दिन आता है ट्राई टू कंप्लीट योर होमवर्क ऑन दैट सेम डे, तो आपका वर्क भी इजी हो जाएगा और कुछ भी वर्क पेंडिंग रहेगा नहीं। सो किड्स, आई एम सो मच मिसिंग यू ऑल। सो टिल नेक्स्ट सेशन किड्स, बाय।